Dear friends, how are you? Hope you are spending days in a nice way, but at the same time, don't forget to take precaution against pandemic. You should take every preventive measures so that you could remain safe from any kind of danger. Today, I have come before you with the explanation of a poem that is included in your syllabus, in class 11 syllabus CBSE English book. And the name of the poem is The Voice of the Rain, written by a famous American poet, Walt Whitman. ये पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले मैं दो चार बात करना चाहूँगा आपके साथ. You see, what is the main purpose of reading a poem? You should not read a poem from the examination viewpoint only. Writing answer in the examination is an important matter, definitely, but that cannot be the chief concern of a reader. We should read poetry with the purpose of getting pleasure of higher level, aesthetic pleasure, that it should take us to the higher level of realization and feeling. Then we have to, when we understand and appreciate the poem to its full, then we can think of approaching the approaching the question that may come in the examination. But when I explain the poem, please follow the line and try to appreciate the poem, try to enjoy the poem. So enjoyment is the main purpose. If you read the Shakespeare's drama also, if you read Shakespeare's drama, in spite of all kinds of storyline, the higher level of enjoyment remains there. इसलिए जब इसको पढ़ाएंगे इस पोएम को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं वाल्ट व्हिटमैन के बारे में. पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन. He was born in 31st May 1819 and he passed away on 26 March 1892. He was an American poet. He is called the father of the American poetry, essayist and journalist. He was a humanist, part of the transition between transcendentalism and realism. And his famous work is Leaves of Grass. What is Leaves of Grass? It is a verse collection. So transcendentalism and realism, these are two difficult things which I don't like to explain right now. We shall go through the poem mainly right now. The Voice of the Rain. Actually, this poem is a conversation between the poet and the rain. The rain explains its eternal journey in its birthplace, the earth to the poet. ये जो पोएम है एक बातचीत हो रहा है, बातचीत के दौरान है, पोएट और रेन के बीच में बातचीत हो रहा है. ये रेन आपको एक्सप्लेन कर रहा है इसकी इटर्नल जर्नी, बर्थ प्लेस से लेकर जहां से उसका फिर वो जर्नी खत्म करने के बाद जहां उसको लौटना है अर्थ पर लौट जाता है. द पोएट कंपेयर्स द रेन विथ ए सॉन्ग एज दे बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी. The song originates from the heart of the singer, travels across to fulfill the aim, and comes back with due love for the singer. Similarly, the rain does not care if anyone bothers about her deeds or not. She completes her work and comes back home. तो इस पोएम में पोएट ने कंपैरिजन किए हैं एक सॉन्ग और रेन के बीच में. दोनों का जर्नी एक जैसा है, दोनों ही अपना जर्नी कंप्लीट करता है और जहां से उसका शुरू हुआ था वहां वो लौट कर आ जाता है. ठीक है, और इसमें कुछ आपको वर्ड मीनिंग्स मैं थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ पर. जैसे दाउ, यू, शावर, रेनफॉल, इटर्नल, एवरलास्टिंग, impalpable means unable to be felt by touching, bottomless, very deep, whence or yeah, from where, vaguely, unclearly, laid, washed, latent, dormant, origin, source, issuing, originating, wrecked, cared about, unwrecked, uncared for, duly, rightly. ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको. एंड हु आर्ट दाउ, जैसे अचानक ये पोएम स्टार्ट होता है. सडन बिगिनिंग, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. तो सॉफ्ट फॉलिंग शावर मतलब बारिश की बात हो रहा है. इसको मैंने पूछा. व्हिच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड.
तो पोएट को बारिश ने जवाब दिया, रेन जवाब दिया। अब देखिए रेन जो है ये एक वरदान है, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। विदाउट रेन लाइफ कुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। सो एंड इट इज द लाइफ सोर्स, इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ, इट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। और बारिश ने पोएट को जवाब दिया। जब उससे पूछा गया कि हु आर्ट दाउ, आर्ट पुराना इंग्लिश है, आर्ट मीन्स आर, दाउ मतलब यू, तो जवाब में क्या बोला, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। वो बोला कि मैं धरती का कविता हूं। पोएट को वो बता रहा है बारिश ने, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। और क्या बोला, इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल मतलब सदियों से, मतलब कि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जो समय हम याद भी नहीं कर सकते उसी समय से। इटर्नल मैं इनपैल्पेबल मतलब जो एहसास करने वाला नहीं है। इनपैल्पेबल मैंने लिखा था अनएबल टू बी फेल्ट। बारिश हम लोग सब देखते हैं, लेकिन उसके भीतर छुपा हुआ जो मतलब है, जो लाइफ को पॉसिबल किया है धरती पे, वो बहुत आदमी नहीं समझ पाता है, इसलिए इनपैल्पेबल बोला गया है। और मेरा जर्नी स्टार्ट होता है बॉटमलेस सी से, वाटर पेपर बन के मैं धीरे धीरे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उसके बाद बारिश बन के मैं जमीन पर आ जाता हूँ। अपवर्ड टू हेवन मतलब दूर आसमान पर पहुंचता हूँ। Whence vaguely formed, altogether changed, yet the same. In the sky, the water vapor, with the help of the dust particles, take the form of the cloud. So the forms change. Definitely, the vaguely formed altogether changed, yet the same. But the basic thing is same. That means the water vapors are now changing into raindrops, and then it will fall. So things are same. Only the formations are getting changed. Forms are changed. उसका सिर्फ चेहरा बदल रहा है, लेकिन अंदर में जो चीज है, जो बारिश का बूंद बन रहा है जमीन पर आने के लिए, जैसे धरती उसको बुला रहा है, धरती का प्यास है, उसको बुझाने के लिए पानी बादल से गिर के नीचे आ रहा है। आई डिसेंड टू लेप द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मतलब जो सूखा होता है, उसको भिगाने के लिए, उसको बारिश के पानी से मैंने वॉश करने के लिए, धोने के लिए मैं ऊपर से नीचे आ जाता हूँ। एटोमीज, स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, धरती पर जो धूल की एक कवर अप रहता है, उसको भिगा देता हूँ पानी से। तो जैसे ये आई करके बोल रहा है, बारिश पोएट को डायरेक्टली जवाब दे रहे हैं। इट्स अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेर सीड्स ओनली लैटेंट अनबॉर्न। दैट्स अ वेरी फैक्ट दैट विदाउट रेन नो सीड कैन जर्मिनेट एनी प्लांट, नो प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द सीड। वो सिर्फ सीड ही रह जाएगा। लैटेंट मतलब उसमें जो पोटेंशियलिटी है, जो संभावनाएं हैं, वो छुपा उसी में कैद होकर रह जाएगा, वो कभी प्रकाश नहीं हो पाएगा, अनबॉर्न जन्म नहीं हो पाएगा। और सिर्फ तो मतलब कि बारिश से तो सब कुछ टोटल रिलेटेड है, ना तो ग्रो द प्लांट ग्रो करेगा, ना ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करेगा, एनिमल वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा, तो सब अनबॉर्न हो रह जाएगा। ठीक है, तो लैटेंट मतलब जो गुप्त रह जाएगा, जो छुपा हुआ रह जाएगा, और सीड बन के रह जाएगा। सीड के अंदर में जो पेड़ का पॉसिबिलिटी छुपा हुआ रहता है, वो सामने नहीं आएगा। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन मतलब ओरिजिन मेरा क्या है, बारिश का ओरिजिन है धरती, और धरती को ही वो लाइफ वापस कर रहा है, मतलब रिटर्न गिफ्ट आप कह सकते हैं। रिटर्न गिफ्ट, जहां से मेरा जन्म हुआ है वही मैं लाइफ सोर्स लौटा रहा हूं। ठीक है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। दैट्स अ वंडरफुल लाइन दैट आई वाज बोर्न फ्रॉम द अर्थ एंड नाउ आई एम गिविंग लाइफ बैक टू दिस अर्थ। उसके बाद ब्रैकेट में है, क्योंकि वो पोएट द बारिश की बात नहीं है, ये पोएट का अपना रियलाइजेशन है कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। जैसे कोई सॉन्ग कोई संगीत अब जब कोई कंठ से निकालता है, आवाज बन के निकालता बाहर आता है, जब कोई द सिंगर गाता है, तो वो अपना बर्थ प्लेस से निकलता है। उसके बाद जब वो संगीत पूरा हो जाता है, फुलफिलमेंट हो जाता है, तो उसको कोई पहचाने या ना पहचाने, उसका कोई द रेक्ट और अनरेक्ट, पे हीट टू समथिंग। रेक मतलब हो गया पे हीट टू समथिंग, एंड अनरेक्ट मतलब अनकेयर्ड फॉर। तो कोई उस पर ध्यान दे या ना दे, वो ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, फिर वो संगीतकार के पास ही वापस आ जाता है। मतलब उसका
जैसे हम लोग गीता में भी है कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब जो काम है वो करके निकल जाना है। बारिश भी अपना ड्यूटी कंप्लीट कर देता है और फिर उसका काम पूरा हो जाता है। उसी तरह जैसे कि म्यूजिक भी वही काम करता है, इट फुलफिल्स इट्स जर्नी एंड देन इट रिटर्न्स टू द म्यूजिशियन। ओके, तो इन इंग्लिश यू कैन से दैट a song or poem is creativity at its best. It has the power to calm, heal, rejuvenate, transform and thrill. In the same way, the entire environment becomes pure, green and beautiful by rain. Both of them rejuvenate and beautify life. So here the poet has made a parallelism between the rain and the song. There are some poetic device also. Soft falling shower, it's an imagery. I am the poem of the earth, it's a comparison, direct comparison. So it's a metaphor. Bottomless sea, hyperbole, that means exaggeration of an idea. Rain as a speaker, बारिश जो बात कर रहा है, that is personification. Last two lines poem का जो है ये parallelism है, simile भी बोल सकते हैं. Last two lines इसका जो है parallelism है. पोएट ने इसमें सॉन्ग और रेन के बीच में पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और देखिएगा कुछ लाइन से जैसे है एंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड फॉर एंड ऑल, एंड फॉर एवर, एंड मेक, ये एनाफोरा है। एनाफोरा क्यों? बिकॉज द सेम वर्ड हैज कम बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव लाइन्स। लगातार 2-3 लाइन में कोई एंड से ही स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग एनाफोरा कहते हैं। लास्ट 2 लाइन्स ब्रैकेट में है क्योंकि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, that is the feeling or the realization of the poet. So friends, we have described and explained the poem, The Voice of the Rain. I will not say that it's a very difficult poem, but its meaning has deep reaching importance. Because as I told you that rain, everybody sees rain, but very few people understand the hidden importance of rain. So I hope that things have been clear to you, and having any kind of doubt, you can directly contact with me. You can ask questions, whatever questions may come in your mind. Thank you very much. Hope to meet you soon. Thanks a lot.